Students, how are you? I hope you all are fine and safe at your place. Myself, Meenakshi Sharma, welcomes you on the online classes of Vidya Bal Bhavan Senior Secondary School. Beta, in my video session 28, I had discussed midpoint theorem and some questions based on midpoint theorem. That is, I had discussed exercise 8.2, question number 1, 2, 3, including the midpoint theorem. So, in this video session 29, I would like to discuss the previous concept also as well as the concept of the converse of midpoint theorem. So, have a look. So, what is midpoint theorem, which I had already discussed with you? The midpoint theorem says that the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side. Midpoint theorem क्या कहते हैं बच्चा? If you have a triangle, if you have a triangle ABC and D and E are the midpoints of AB and AC respectively. D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. Now join DE. Midpoint theorem says that the line segment joining the midpoints. ये line segment है D जो किसको join कर रही है? Joining the midpoints of any two sides. Any two sides के midpoint. कौन-कौन सी sides हैं? Side AB and side EC. इन दो sides के midpoint को join करके एक line segment draw है. तो midpoint theorem कहती है कि जो ये line segment DE है ना, वो किसके parallel होगी? BC के. So D is the midpoint of AB. E is the midpoint of AC. This implies that DE is parallel to BC. This is the midpoint theorem. DE किसके parallel होगी? BC के. और you can say that और DE half of BC ये भी होगी. जो DE है ना वो BC का हाफ होगी. ये आपकी क्या है? midpoint theorem and this is very important beta. Got it? This I had already discussed in my video session 28. Okay. Now in today's session, that is video session 29, my main concept is based on the converse of midpoint theorem. And in today's class also I will discuss some questions based on the converse of midpoint theorem. Got it? So what is the converse of midpoint theorem? Look at this statement. If a line is drawn parallel to one side of a triangle. देखो जितना उसमें बोला उतना मैं कर रही हूँ. एक triangle draw करो. Converse क्या कहती है midpoint theorem का? If a line is drawn, एक line draw की गई है parallel to one side of a triangle. मान लो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी DE which is parallel to BC. एक ये लाइन ड्रॉ करिए DE which is parallel to BC. देखो if a line is drawn parallel to one side of a triangle and parallel to the other side bisect the third side. इसका मतलब क्या है? Parallel to the other side bisect the third side. अगर if D is the midpoint of AB, if DE parallel है BC के, DE parallel है BC के, ठीक है? और D किसका midpoint है? and D is the midpoint of AB और D midpoint है AB का. So this implies that E is also a midpoint of AC. इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये कंडीशन कन्वर्स का मतलब क्या हो गया? अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो by using the converse of midpoint theorem you can say that D and E is the midpoint of AB as well as AC. यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट साइड है D उसका midpoint है, DE parallel है BC के, तो ऑटोमेटिकली you can say that E is the midpoint of AC. Bisect the third side. वो थर्ड साइड को bisect करेगा. ये फर्स्ट साइड है मान लो parallel to another side, तो ये सेकंड साइड हो गई, ये
फर्स्ट साइड हो गई, ये सेकंड साइड हो गई, ठीक है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, कोई भी थर्ड साइड आप ले सकते हो। तो इस साइड को क्या करेगा बच्चे को, बाइसेक्ट करेगा, मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो यू कैन से दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. I hope you understood, beta. Student, let's start with exercise 8.2 question number 4. Beta, this exercise 8.2 question number 4 is based on the converse of midpoint theorem. Okay, so have a look. Read the question first of all. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. Beta, you have given a trapezium ABCD in which AB is parallel to this line CD and BD is the diagonal. E is the midpoint of AD. This is given to you. What is given? E is the midpoint of AD. A line is drawn through E. कहते हैं E से एक लाइन ड्रॉ की है which is parallel to AB. It means EF is parallel to AB. Intersect BC. Intersect this line BC at F. जो एक लाइन EF ऐसी ड्रॉ की है जो BC को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. आपको क्या शो करना है कि जो F है ना, ये मिड पॉइंट है किसका, BC का. सो व्हाट इज गिवन, गिवन ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD. Also, E is the midpoint of AD. Is the midpoint of AD. Beta, I am doing one thing. Let call this point G. Call this point G. Let EF intersect DB. Let EF intersect DB at some point G. यहाँ पे कोई point नहीं था ना. I have called this point as G and I have assumed that EF intersect DB at some point G. Got it? So बेटा, in triangle ADB, ये देखो A, ये रहा A, D, B और you can say ABD. इस वाले ट्राइंगल की बात करूं. What is given in this triangle? What is given? This line. ये जो लाइन है ना, ये आपको बोला था ना कि EF पैरेलल है किसके, AB के. In triangle ADB, since EF parallel to AB and also D is the midpoint of AD, then by converse of midpoint theorem, we can say that G is the midpoint of BD. समझ में आया? देखो, इस वाली ट्राइंगल की बात करते हैं. इन ट्राइंगल ADB, what is given? It is given that EF is parallel to AB. बेटा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मान लो ये पॉइंट है EF, ये लाइन किसी लाइन सेगमेंट के पैरेलल है. सपोज AB के पैरेलल है, तो इस लाइन सेगमेंट पे जितने मर्जी पॉइंट आएंगे ना, वो सारे के सारे, मान लो ये H है, ये F है, तो HE, तो ये जो HE लाइन सेगमेंट है ये भी पैरेलल होगी AB के. ठीक है, समझ में आया? इस लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो अनदर लाइन सेगमेंट्स के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे. ठीक है, तो सिंस EF इज पैरेलल टू AB, यू कैन से दैट EG इज पैरेलल टू AB. EG भी AB के पैरेलल हो जाएगी. और E क्या है, AD का मिड पॉइंट है. तो अभी आपको मैंने कन्वर्स कराया था ना मिड पॉइंट थ्योरम का, तो GB क्या हो जाएगा, BD का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो F is the midpoint of BC.
हमें ये शो करना है कि एफ बी सी का क्या है, मिड पॉइंट है। देखो ये लाइन सेगमेंट एज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी के, और ए बी किसके पैरेलल है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो इसका मतलब क्या हो गया, ई एफ सी डी के पैरेलल हो जाएगी। ये जो लाइन सेगमेंट ई एफ है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, जब लाइन सेगमेंट ई एफ सी डी के पैरेलल है, जी किसका मिड पॉइंट है, बी डी का। अभी आपने प्रूव किया है जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ऑल्सो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, ऑल्सो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सो फ्रॉम दीज टू फैक्ट्स, देखो ये लाइन, ये जो लाइन है ई एफ, ये किसके पैरेलल है, ए बी के। तो ई एफ ए बी के पैरेलल है और ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो ई एफ सी डी के भी पैरेलल हो जाएगी। जी एफ, सॉरी है ई एफ नहीं है बेटा, हाँ यहाँ पे पहले ई एफ आएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट जी एफ इज पैरेलल टू सी डी। देखो क्योंकि ई एफ ए बी के पैरेलल है, ई जी भी ए बी के पैरेलल है, ई एफ ए बी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ई एफ बी सी डी के पैरेलल हो जाएगी। इन द सेम वे जी एफ बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा। जब जी एफ सी डी के पैरेलल है, जी मिड पॉइंट है बी डी का, अभी आपने ऊपर प्रूव किया। सो अगेन बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कैन यू से दैट इट इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट theorem, so by the converse of midpoint theorem, f is the midpoint of BC, और यही आपको प्रूफ करना था। Hence proof. I hope you understood better. Come to question number 5 of exercise 8.2. In a parallelogram ABCD, you have given a parallelogram ABCD in which E is the midpoint of AB and F is the midpoint of CD. What it? Show that the line segment AF and EC, this line segment AF and EC trisect the diagonal BD. Trisect. What do you mean by trisect? Trisect means dividing into equal parts, dividing the line segment into 3 equal parts. So, in short, beta, what is given and what you have to do? You write on your own. So, to show DP is equal to PQ is equal to QB. आपको ये शो करना है कि DP, PQ and QB equal है. Why they are equal? Because it is given that AF and EC trisect. AF and EC is diagonal को trisect कर रहा है. तो जो diagonal trisect हो रहा है, it means वो diagonal 3 equal parts में divide हो रहा है. ठीक है? तो अच्छा कैसे करेंगे? Since ABCD is a parallelogram, so you can say that AB parallel to CD and AB is equal to CD also. आपको पता नहीं parallelogram में if one pair of opposite sides are equal and parallel, you can say that the figure, whatever the figure is found, this figure is known as parallelogram. किसी भी quadrilateral में अगर one pair opposite pair पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। एंड इट इज गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो यू कैन से दीस टू कंडीशन विल कम अप। ये दो कंडीशंस आएंगी। ठीक है, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, देखो मैंने अभी आपको बताया था इन माय प्रीवियस क्वेश्चन, मान लो आपके पास ये लाइन सेगमेंट AB है और ये दूसरी लाइन सेगमेंट CD है। अगर मैं ये बात बोलती हूँ कि AB CD के पैरेलल है, इफ AB इज पैरेलल टू CD, तो इसका मतलब अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे H G E F, तो वो भी कैसे हो जाएंगे, H G पैरेलल हो जाएगा E F में। यहाँ पे कितने भी पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स की अनदर लाइन सेगमेंट के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। व्हाई दे आर पैरेलल? बिकॉज द होल लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट, देखो अगर AB CD के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, तो AB लाइन सेगमेंट में AE भी है, तो आप कह सकते हो कि AE
FC के पैरेलल होगा, AE पैरेलल टू FC। Why AE is parallel to FC? Because AB is parallel to CD, ठीक है, and AB is equal to CD, so half of AB is equal to half of CD, दोनों तरफ half half से मल्टीप्लाई किया, half of AB का half क्या बनेगा, AE is equal to half of CD is FC। बेटा आप half of AB को EB भी लिख सकते थे, AB का हाफ AE भी हो सकता है, AB का हाफ EB भी हो सकता है, पर मैंने AE इसलिए लिया है क्योंकि मुझे AFCE को पैरेललोग्राम शो करना है, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया है। दिस इंप्लाइज दैट AE इज इक्वल टू FC। देखो AE FC के इक्वल भी और पैरेलल भी है, सो फ्रॉम कंडीशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 AEFC is a parallelogram। The one pair of opposite sides are equal as well as parallel। Equal भी है और parallel भी है, so you can say that AEFC is a parallelogram। जब AEFC parallelogram हो गया, अब आप इसके बाद क्या करोगे, आपको क्या शो करना है, DP, PQ और QB इनको इक्वल दिखाना है। I am taking this triangle DQC, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ठीक है, इसको मैंने ग्रीन से थोड़ा वो कर दिया है, ये वाला ट्राइंगल है पूरा बेटा, ये पूरा ट्राइंगल ले लो, ठीक है। इन ट्राइंगल DQC, ध्यान से देखो बच्चे, इस वाले ट्राइंगल में F किसका मिड पॉइंट है, CD का। इन ट्राइंगल DQC F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। देखो बेटा इस वाले ट्राइंगल में F किसका मिड पॉइंट है, CD का मिड पॉइंट है ना, और आपने अभी बोला है कि AFEC पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल होगी ना, क्योंकि ये पूरा पैरेललोग्राम है, तो उसी पैरेलल लाइंस पे क्या पॉइंट है, तो यू कैन से दैट F is the midpoint of CD and FP is parallel to QC and PF is parallel to QC, then by converse of midpoint theorem, you can say that midpoint theorem, we can say that P is the midpoint of DQ, P is the midpoint of DQ। आपको midpoint theorem का कन्वर्स क्या था कि कोई ट्राइंगल ABC है, मान लो अगर यहाँ पे DAB का मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो आप बाय कन्वर्स से ये बोल देते थे ना कि EB AC का मिड पॉइंट होगा। इन द सेम वे बेटा, इन दिस ट्राइंगल DQC F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। F किसका मिड पॉइंट है, DC का, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, बिकॉज AFEC इज अ पैरेललोग्राम, और उसी पैरेललोग्राम पे ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो वो भी लाइन सेगमेंट पे वो पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से FP QC के पैरेलल हो गए, जब ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल हो गई और ये इसका मिड पॉइंट है, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यू कैन से दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो जब P DQ का मिड पॉइंट है, सो दिस इंप्लाइज दैट DP is equal to PQ। मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 1। DP किसके इक्वल, अच्छा 1 और 2 ऑलरेडी मार्क्ड है, तो कॉल दिस एज A, इसको A इक्वेशन बोल दो, ठीक है। तो DP किसके इक्वल आ गया, PQ के। अब मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगी, इन द सेम वे आई एम कंसीडरिंग दिस ट्राइंगल APB, ठीक है, पहले ये वाला लिया था, अब ये वाला ले लूं, ये नीचे वाला, ये पूरा ले लूं, ठीक है। इन ट्राइंगल APB, देखो इस वाले ट्राइंगल में E किसका मिड पॉइंट है, AP का। E is the midpoint of AB। E किसका मिड पॉइंट है, AB
ठीक है, AB का मिड पॉइंट है। और यहाँ पे देखो ये जो लाइन है EQ वो किसके पैरेलल है, PA के। ऑल्सो EQ पैरेलल टू AP, E मिड पॉइंट है AB का, EQ पैरेलल है AP के, Q पैरेलल है क्योंकि AEPFC इज अ पैरेललोग्राम, तो वो इसी लाइन सेगमेंट्स में आ रहे हैं, तो ये लाइन इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल हो जाएगी। देखो मिड पॉइंट भी है और पैरेलल भी है, सो बाय कन्वर्स ऑफ, सो अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आ जाएगा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, क्योंकि मैंने इतना ट्रायंगल लिया था, देखो यहां से ये ट्रायंगल लिया था ना, तो ये वाला था, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, PB का मिड पॉइंट आ गया। जब Q PB का मिड पॉइंट हो गया तो यहां से आप कह सकते हो कि PQ QB के इक्वल हो गया, दिस इंप्लाइज दैट PQ इज इक्वल टू QB, कॉल दिस इक्वेशन एज B। बेटा समझ में आ गया आपको यहाँ पर? अच्छा, फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B DP किसके इक्वल है, DP इज इक्वल टू व्हाट, PQ, एंड फ्रॉम B PQ इज इक्वल टू व्हाट, QB। ये तो आपको प्रूफ करना था, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, हेंस प्रूफ। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। इसमें आपने कुछ नहीं किया है, EAB का मिड पॉइंट गिवन था, FDC का मिड पॉइंट था, तो आपने इस वाले को AEFC को आपने क्या शो करा है, पैरेललोग्राम शो करा है। क्यों पैरेललोग्राम शो किया है, बिकॉज यू वांट टू शो दैट कि ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है और ये जो लाइन है AP इस लाइन के पैरेलल है, वहां से आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा के आपने इसका प्रूव किया है। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड। Number 6 of exercise 8.2. Question number 6 is show that the line segments joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other. Beta, what is the meaning of this question? The question is saying that if you have a quadrilateral ABCD, got it? If you have a quadrilateral ABCD, you have a quadrilateral ABCD, and the line segment joining the midpoints of opposite side. देखो AB की opposite क्या है, CD, तो AB का कोई मिड पॉइंट होगा, ठीक है। BC के opposite क्या है, AD, तो सबके कोई मिड पॉइंट्स है ना। Suppose call these midpoints as P, Q, R and S. The line segment joining the midpoints of opposite, अब इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है, ज्वाइन कर दिया, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं इनके ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन करूं, आई एम डूइंग विद अनदर पेन, ठीक है। ये देखो, ये डायगोनल AC को ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर दिया ज्वाइन AC। अब ये देखो क्या है, सिंस P is the midpoint of ABC, what is given and what to prove, अपने आप लिख लेना। Since P is the midpoint of AB, P किसका midpoint है, AB का, ठीक है, and Q is the midpoint of, and Q is the midpoint of BC। मिड पॉइंट थ्योरम क्या किया ना, कि ये देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, कोई ट्राइंगल है ABC, D मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है AC का, इसको ज्वाइन कर दो तो वो क्या कहती है, DE पैरेलल हो जाती है BC के, DE पैरेलल होती है BC के, एंड DE हाफ ऑफ BC। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है ना कि D is the midpoint of AB, E is the midpoint of AC, then this condition holds. This is the midpoint theorem. So in the same way, in this question, if I am considering in triangle ABC, अगर मैं ट्राइंगल
AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम कैन यू से दैट PQ is parallel to AC and PQ half of AC. All this equation number 1 समझ में आ गया। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप बोल सकते हो ना कि जो ये PQ है वो AC के पैरेलल भी है और AC के हाफ भी है। Why? This is parallel and half of AC because P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of AC. Got it? So call this equation as 1. Now in the same way in triangle ACD, beta S is the midpoint of AD. S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC. R is the midpoint of DC. So by midpoint theorem, can you say that SR is parallel to AC and SR half of AC? SR parallel to AC and SR half of AC. Call this equation as second. From 1 and 2 देखो जो PQ है वो भी AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, ठीक है। तो from 1 and 2 you can say that PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. Why PQ is equal to SR? You can check from there. PQ is same as half of AC and SR is also same as half of AC. So half of AC, half of AC becomes cancelled. So what is left? Only PQ and from there only SR. So you can say that PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. So you know that if one pair of in a quadrilateral, if one pair of opposite sides are equal and parallel, so you can say that PQSR is a parallelogram. So this implies that PQSR is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. और आपको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यही तो आपको शो करना था कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स को जॉइन करके ऑपोजिट साइड्स को जो क्वाड्रिलेटरल है वो बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब आपको क्या शो करना था, PR एंड SQ ये क्या है बच्चे, देखो ये और ये इसके क्या है, डायगोनल्स है। डायगोनल्स किसके हैं, PQRS के डायगोनल्स कौन से हैं, PR एंड SQ। तो आपके पास ये कंडीशन आ गई है ना कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम एंड वी नो दैट diagonals of a parallelogram, diagonals of a parallelogram bisect each other. डायगोनल्स क्या हो गए, जो पैरेललोग्राम्स के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखो आपको क्या कंडीशन गिवन थी, यू हैव गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and AD. आपको प्रूफ करना था ना कि जो मिड पॉइंट्स के ऑपोजिट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके लिखा ना, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या है, ये ऑपोजिट पॉइंट ये हो गया, इसका क्या है ये, इनको ज्वाइन करके, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है, PQRS एक पैरेललोग्राम है तो PQRS क्वाड्रिलेटरल भी होगा तो वो बाइसेक्ट करते हैं। सो यू प्रूव्ड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। I hope you understood this question. Question of exercise 8.2, question number 7. This question is very important. You have given a triangle ABC, right angle at C. A. ACB. This is a right angle triangle at C. Okay, so C is 90 degree. The point M on hypo-AB. AB पे कैसे पॉइंट है? M is a point which is lying on AB and M is the midpoint of AB. This is given to you and this is parallel to BC. इसका मतलब
बोल देते हैं एम डी। डी इज द पॉइंट ऑन ए सी। डी कैसा पॉइंट लेना है ए सी पे, ठीक है, डी पॉइंट लेंगे ए सी पे सच दैट एम डी hypo AB and D is the point, D is the point on AC such that MD पैरेलल होना चाहिए BC के, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, यू हैव गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, आपको AB पर एक ऐसा पॉइंट M लेना है सच दैट M is the mid point of AB और you can say that AM is equal to MD, ठीक है। अब आपको ये शो करना है कि जो ये आपके पास गिवन है कि जो MD है ना वो BC के क्या है, पैरेलल है। दिस इज द कंडीशन विच इज गिवन टू यू। अब आपको क्या बताना है, अच्छा ये था ना इंटरसेक्ट AC और D, AC किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, D पे, तो आपको शो करना है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आपको शो करना है D किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो जो गिवन ऑन प्रूफ है यू हैव टू राइट ऑन योर ओन, आई एम डूइंग द सॉल्यूशन। सिंस M is the midpoint of since M is the midpoint of AB and MD is parallel to BC, देखो M AB का मिड पॉइंट है और MD BC के पैरेलल है, so by converse of midpoint theorem, can we say that D is the midpoint of AC? D is the midpoint of AC. Got it? देखो M किसका मिड पॉइंट था, AB का, और MD क्या है, BC के पैरेलल है, तो यही तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का एक होता है। ये देखो कन्वर्स क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम का, इफ यू हैव अ ट्राइंगल ABC, D is the midpoint of AB and D is parallel to BC, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है ना, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करने का मतलब AE EC के इक्वल होता है, तो दिस इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सो D is the midpoint of AC। ये आपको शो करना था। अगर D AC का मिड पॉइंट है, दिस इंप्लाइज दैट AD is equal to CD। फर्स्ट पार्ट प्रूफ, आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। इन सेकेंड पार्ट यू हैव टू प्रूव दैट MD is perpendicular on AC. In second part, to prove MD perpendicular on AC, MD perpendicular on AC, इसका मतलब आपको यहाँ पे 90 डिग्री शो करना है। अगर आपने यहाँ 90 डिग्री शो कर दिया तो आप बोल दोगे MD क्या है, AC पे perpendicular है। अच्छा एक चीज और देखो, since MD is parallel to BC, since MD is parallel to BC, ये वाली जो लाइन है इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, एंड AC is ट्रांसवर्सल, AC is ट्रांसवर्सल। Go back to chapter number 6, lines and angles, when two lines are parallel और एक इंटरसेक्ट उसको क्या करती है, सॉरी when two lines are parallel और एक ट्रांसवर्सल उसको कट करती है, तो जो कोइंसिडेंट एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दे फॉर्म 180 डिग्री और नॉट, दिस आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन चैप्टर नंबर 6। व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर ट्रांसवर्सल लाइन, देन कोइंसिडेंट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल फॉर्म्स 180 डिग्री, ठीक है। तो इधर देखो ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। जब ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखा दूं ऐसे, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इसका सम कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय कोइंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, ठीक है बेटा। I hope you understood this fact. Angle 1 is what? Angle 1 is given which is 90 degree, so in place of angle 1 you can write 90 degree. 90 degree plus angle 2 is equal to 180 degree,
ट्रांसवर्सल है, तो कोइंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देखो ये ऐसे बना हुआ है, ये दो लाइंस पैरेलल और ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो इसका और इसका सम, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, ये आपने करा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एंगल 2 आ गया, एंगल 2 इज 90, सो दिस इंप्लाइज दैट MD इज perpendicular on AC. Got it? I hope you understood this one. You proved first part, second part, now come to the third one. In third part you have to show CM is equal to MA is equal to half of AB. Got it? तो आपको ये प्रूफ करना है. Now construction join MC, construction join MC, ठीक है. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेना, कंस्ट्रक्शन जॉइन MC, ठीक है. ओके, आपको क्या प्रूफ करना है, AM को आपको किसके इक्वल शो करना है, AM को MC के भी इक्वल शो करना है. देखो आपने देखा कि जो AM है वो किस ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल ATM में, और MC जो है वो किस ट्राइंगल में है, MC लाइज इन द ट्राइंगल MCD, इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है. अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, सो बाय सिंप्लिसिटी कैन वी से दैट MC इज इक्वल टू MA, बोल सकते हैं ना. सो कंसीडर ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, कंसीडर ट्राइंगल AMD, कंसीडर ट्राइंगल्स AMD and triangle MCD, ठीक है. In these two triangle, can you say that MD is equal to MD common in both the triangles? MD is equal to MD common. MD is equal to MD common. Okay. Can you say that AD is equal to CD as D is the midpoint of AC? So AD is equal to CD as D is the midpoint of AC. Now the third condition, can you say that, call this angle 2 and this as angle 3, can you say that angle 2 is same as angle 3 because of 90 degree, you proved above. Angle 2 is equal to angle 3 each 90 degree, अभी आपने प्रूफ किया है, ठीक है, ये 90 डिग्री प्रूफ किया था. So from these three conditions, can you say that triangle AMD is congruent to triangle MCD by SAS congruency, two sides and the included angle. ये देखो, two sides and the included angle, ये दोनों sides और included angle is equal to two sides and the included angle. So by SAS you can say both the triangles are congruent, and you know that when two triangles are congruent their corresponding parts are equal. So by simplicity can you say that MC is equal to MA. So AM is equal to MC by CP, ठीक है. अच्छा, ये तो आपके पास आ गया कि AM MC के इक्वल है, ठीक है. अच्छा देखो, AM किसके इक्वल आ गया, MC के. आप AB को क्या लिख सकते हो, देखो आपको AB भी चाहिए ना. नाउ वी कैन राइट AB एज, हम AB को क्या लिख सकते हैं, AB को ये लिख सकते हैं AM प्लस MB, AM प्लस MB. कैन यू राइट, बिकॉज M is the midpoint of AB ना, so you can write AB as the sum of AM plus MB. आहा बेटा. अच्छा, आपको MB नहीं चाहिए, आपको MB नहीं चाहिए ना, यहाँ पे कहीं पे भी MB नहीं है, you want only AM. So in place of AM can you write, so in place of MB can you write AM? AB is equal to AM plus AM. In place of MB I have written AM. MB के प्लेस पर AM लिख दिया, क्यों, क्योंकि AM MB के इक्वल है और मुझे MB नहीं चाहिए था, मुझे AM चाहिए. तो in place of MB I have written AM, ठीक है. Because
ठीक है, कॉल दिस इक्वेशन एज B. Now from A and B, now from A and B, देखो A और B से क्या आया, MC किसके इक्वल है, MC इज इक्वल टू व्हाट, AM, और AM किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB. और यही तो रिजल्ट था जो आपको प्रूव करना था. समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ दिस कंप्लीट your exercise 8.2. I have discussed each and every question of exercise 8.2, that is from question number 1 to question number 7. Now your homework is you have to do all the examples of exercise 8.2. 8.2 की जो भी एग्जाम्पल्स हैं, 2 ही एग्जाम्पल्स हैं, और वो 2 एग्जाम्पल यू हैव टू डू इन योर होमवर्क नोटबुक, और यू कैन से इन असाइनमेंट शीट्स, जो आपने असाइनमेंट की शीट्स बनाई है ना, आप उस पर करोगे. आई होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर. सो टेक केयर योरसेल्फ एंड वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली. थैंक यू सो मच.